Good evening, everyone. I am audible. Just check. Good evening, everyone. I am audible. Just check. Good evening, everyone. Just check. I am audible or not. My sound is clear or not. Just, just reply me. Just reply to me. I am audible or not. I am audible. आवाज आ रही है मेरा आवाज? हाँ? Audible. Okay, Mamta ma'am. Thank you. Thank you very much. Okay, the time is 7 o'clock. Just we will start. है ना? Just we will start here. Today's workshop. Today's workshop. Educational potentials of ChatGPT for enhancing teaching and learning. तो आप सभी लोगों का welcome of all you on this workshop. We will discuss here about the ChatGPT, exactly ChatGPT for enhancing teaching and learning. So it is very important topic. Here we will discuss. I think everyone know about uh, this ChatGPT, but uh, some of them know about the technicality of the ChatGPT कि how get the use it, है ना, किस तरह से यूज करना है ना, कैसे हम लोग उसमें प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं. So today we will learn about the all things about the Chat GPT A to Z. So I think we should start here. Time is 7 o'clock. So kindly, I request the all participants kindly tell us कि how many people know about the Chat GPT. They use or not use. Yes, write the chat box or they can speak, unmute your mic. Yes, how many people use Chat GPT? Mamta ma'am, yes. And anyone? How many people use Chat GPT? Overuse. Answer to कीजिए sir. Yes या no, no या yes. Yes. How many people know Chat GPT? Just write here yes or no. Yes or no. तो इससे क्या होगा? We can know कि how many people are interested of this such type of the workshop. Basically ये बता दिए कितने लोग ऐसे हैं जो लोग जान रहे हैं कि चैट जीपीटी क्या है और जिन लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है. सिर्फ देयर इज ओनली टू पीपल्स आर हियर. मैम ममता मैम एंड हेमंत. दे दे आंसर हियर. Yes, just
कोई नहीं जानता होगा। There is no any responses. Okay, no problem. Now we will start it. Starting ChatGPT for enhancing the teaching and learning. I am Mohammad Rafiq, AI Tools Expert and Director, Bharat Institute and Bharat Learning. इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. We will discuss. We will start here. So first of all, we learn कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या, हम चैट जीपीटी का यूज क्यों करें, क्या चैट जीपी एजुकेशन एंड टीचिंग और लर्निंग के लिए चैट जीपीटी टीचिंग एंड लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और चैट जीपीटी से हाउ कैन क्रिएट द ऑल रिसर्च मटेरियल एंड ऑल थिंग्स, है ना. चैट जीपीटी से हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या मिल सकता है, और चैट जीपीटी हमें किस पर फोकस करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हियर कि व्हाट इज चैट जीपीटी. बेसिकली चैट जीपीटी इज an intelligent assistant designed to the help user with the various tasks, writing, research and decision making, है ना. It uses advanced technology to provide quick, accurate response to user queries. The assistant can communicate in multiple languages and is available 24/7. It is user-friendly interface, make it is easy for the people of all ages to use. ChatGPT is designed to be helpful, informative, and creative while maintaining a friendly, inclusive tone. So, exactly what is the ChatGPT? ChatGPT ChatGPT help the use with various tasks, जिस तरह से writing, research, and decision making. It is give the answer quickly, and it is assistance. We can communicate in multiple language. It is available 24/7, है ना, हमेशा के लिए अवेलेबल है. जब भी आप कुछ पूछना चाहेंगे, चैट जीपीटी विल बी आंसर्ड यू योर क्वेरीज. तो चैट जीपीटी आपका 24 आवर्स आपके साथ है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार है. जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वारीज है, चाहे वो राइटिंग के लिए हो, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, चाहे वो आपकी डिसीजन मेकिंग हो, तो ये तो एक पार्ट है टीचिंग का. तो वी विल डिस्कस ओनली इन टीचिंग एंड लर्निंग. वैसे तो चैट जीपीटी तो बहुत सारे फील्ड में यूज हो रहा है, ठीक है. तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी हो, किसी भी एज का बंदा हो, चैट जीपीटी कैन आंसर द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, है ना. जो बस आपको पूछना आना चाहिए. चैट जीपीटी बेसिकली एक तरह से जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ना, उसी तरह से चैट जीपीटी भी हमारी लैंग्वेज को समझता है, हमारी क्वेरीज को समझता है, हमारे क्वेश्चंस को समझता है ना. जो हम क्वेश्चंस डालेंगे, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कभी भी हमने अपनी लाइफ में पढ़ा होगा कि वाई, वेयर, व्हेन, विच, तो इन वर्ड्स का यूज करके भी वी कैन क्रिएट द कोड फ्रॉम द चैट जीपीटी, ठीक है ना. तो चैट जीपीटी डिजाइन हेल्पफुल किसके लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली. व्हाट प्रॉब्लम हियर, माय वॉइस इज नॉट क्लियर. माय वॉइस इज क्लियर नॉट, ममता मैम. ममता मैम, माय वॉइस क्लियर और नॉट. यस सर, कट कट के आ रही है सर.
Actually, no. The other participant, my voice is clear or not? इधर से तो प्रॉपर भी सही है मैम एक्चुअली इट मे बी द नेटवर्क issues from your side. Okay, so just so ChatGPT is designed to be the helpful, informative, and creative while maintaining friendly and inclusive tone. बहुत ही अच्छी तरीके से चैट जीपीटी को डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही हेल्पफुल भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, क्रिएटिव भी है। तो ये किसी भी तरह से आप चैट जीपीटी का यूज अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल, अपने टीचिंग यानी किसी भी काम में आप चैट जीपीटी का काम कर सकते हैं। बेसिकली चैट जीपीटी का यूज करने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि इसका टाइम, कोई वर्क को हम अगर 4 घंटे में करते हैं तो यूज ऑफ द चैट जीपीटी वी कैन डू दिस वर्क इन जस्ट ए मिनट, है ना। वो डिस्कस करेंगे बाद में, विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। We will know about the exactly what is the chat GPT, history of chat GPT. चैट जीपीटी कैसे आया, कहाँ से आया, क्या है, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, तो थोड़ा सा ब्रीफली हिस्ट्री है, इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, चैट जीपी क्या है? एआई पावर चैटबॉट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू इंटरेक्ट विद यूजर। तो कैसे, क्या चैटबॉट क्या करता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू इंटरेक्ट विद यूजर। किसी भी इंसान से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ये क्या होता है? जुड़ता है। एआई पावर्ड है, ठीक है। तो इट वाज द डेवलप, किसने डेवलप किया? भाई ओपन, एक कंपनी है जिसका नाम ओपन एआई है। ठीक है, वो क्या करती है? वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ओपन एआई क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। वो कौन, क्या क्या काम करती है? उसका सिर्फ काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च है, यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। तो उस एआई ने 2015 में क्या किया? ग्रुप ऑफ द टेक्नोलॉजी लीडर्स इंक्लूडिंग एलन मस्क एंड सैम एल्टमैन, तो उन लोगों ने मिलकर एक 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 कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जिसका नाम ओपन एआई है। और ओपन एआई ही चैट जीपीटी को रन करती है। चैट जीपीटी was trained on the massive amount of the text data using deep learning algorithm known as the generative pre-trained transfer। जीपीटी मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो एक ये क्या करती है? डीप लर्निंग एल्गोरिदम, डाटा यूजिंग द डीप लर्निंग एल्गोरिदम नॉन एज ए जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, है ना। जो जीपीटी है वो क्या है? लर्निंग एल्गोरिदम। वही एल्गोरिदम तो क्या है? बिना एल्गोरिदम के भी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम भी काम नहीं कर सकता। तो इसमें भी डाटा, जो जो डीप लर्निंग लर्निंग का जो डाटे को उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के लिए उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया, एल्गोरिदम बनाया, और उन्होंने उसको हम किस किस नाम से आते हैं? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, द मॉडल वॉज फर्स्ट रिलीज इन जून 22। तो कब ये रिलीज हुआ? जब तैयार हो गया, तो ये जो रिलीज हुआ है जून 2020 को। एंड हैज सिंस बीन फाइन ट्यून टू द इम्प्रूव इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू द यूजर इनपुट। तो तब से ये शुरू हुआ और तब से ही बहुत पॉपुलर हो गया। एक ये कहते हैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में, एक रेवोल्यूशन ला दी उसने चैट जीपीटी। रेवोल्यूशन कैसे ला दी? कि जो काम हम 4 घंटे में करते थे वो जस्ट मिनट में कर रहे हैं ना। तो चाहे ईमेल हो, चाहे लेटर हो, चाहे आपको कोई रिसर्च का मैटर ढूंढना हो, या फिर कोई भी लेसन प्लान हो, या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो भी आप चाह रहे हैं, यू कैन गेट दियर जस्ट ए मिनट, है ना। तो ये क्रांति तो हो गई। जो जो चीज आप भाई अपना माइंड लगा के 1 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में आप किसी भी राइटअप बनाए, कोई कोई किसी भी कोई आप टीचिंग के लिए कोई लेसन प्लान तैयार करते हैं। लेसन प्लान तैयार करने के लिए आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन
यहाँ पर क्या है, चैट जीपीटी ने लेसन प्लान को बहुत इजीली तरीके से प्रेजेंट कर दिया, बहुत इजीली तरीके से आपके सामने पेश कर दिया। कैसे पेश किया कि आपने जब फॉर एग्जाम्पल यू वांट वो जो आपको मैं प्रैक्टिकल लास्ट में दिखाऊंगा, ये फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे फ्रेंच, आई वांट टू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, या प्लीज काइंडली सजेस्ट मी कि हाउ टू आई क्रिएट अ लेसन प्लान इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वो आपको पूरा एक लेसन प्लान तैयार करके देगा। जस्ट सेकंड द चैट जीपीटी विल जनरेट the lesson plan of your topic just a second, just a some second। तो ये क्या है, क्या करता है, मॉडल वाज द फर्स्ट रिलीज इन जून 2020 एंड हैज सिंस बीन फाइन। मतलब अच्छा हुआ और लोग समझने लगे इसकी एबिलिटीज को, और जो लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे इनपुट मिलने लगे। चैट जीपीटी हैज बिकम द पॉपुलर टूल फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस एंड जनरल इंफॉर्मेशन इंक्वायरीज। तो क्या हुआ, चैट जीपीटी क्या हो गया, उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया जो लोग लैंग्वेजेस लर्निंग करते थे एंड कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते थे और जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंक्वायरीज। तो उनके के लिए उनके मतलब उनके बीच चैट जीपीटी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, जब वो पॉपुलर हो गया तो लोगों को लगा कि यार ये अच्छी चीज है, इसे हमें यूज करना चाहिए। तो द पीपुल्स आर नाउ द पीपुल्स आर यूजिंग दिस चैट जीपीटी, है ना। तो तो जस्ट वन वी विल लर्न हियर एग्जैक्टली के हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, किस तरह से चैट जीपीटी वर्क करता है। अभी तो हमने सीखा कि चैट जीपीटी क्या है, व्हाट इज चैट जीपीटी एंड हिस्ट्री ऑफ चैट जीपीटी। वो हमें जब यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, वी शुड लर्न कि हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसमें किस तरह से एल्गोरिदम होता है, नेचुरल लैंग्वेजेस मॉडल्स क्या होते हैं, हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, इसका आर्किटेक्चर्स क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वी विल डिस्कस इन वेरी शॉर्ट and only one slides कि how chat gpt works, है? First of all, chat gpt is language model developed by OpenAI। जो बताया OpenAI ने डेवलप किया, ये लैंग्वेज मॉडल है and it is built open to the GPT 3.5 आर्किटेक्चर। जो लोग चैट जीपीटी का यूज करते होंगे वो ये देखते होंगे कि पहले पहले का जो वर्जन था 3 था, लेकिन अब जो वर्जन जो आ गया है, आपने देखा होगा जो फ्री वाला यूज करते हैं 3.5 आर्किटेक्चर। यानी 3.5 आर्किटेक्चर इट्स मीन whenever we will write down anything in चैट जीपीटी, तो वहां पर क्या होगा, एक आर्किटेक्चर बन के आ जाए। पहले क्या होता था कि आपको एक सिंपल सा मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैटर बन के आ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, वो बाकायदा आपको एक हेडिंग भी देता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करता है ना। लेकिन पहले कैसा डिजाइन था, पहले चैट जीपीटी 3.5 नहीं था, है ना, क्योंकि अब पे के लिए 4.0 जो वर्जन है इज अवेलेबल, वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन 3.5 आर्किटेक्चर इज फ्री वर्जन। इट्स वर्क बाय यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक। डीप लर्निंग टेक्निक यानी बहुत सारे वर्ड्स में से आपके एक कोई वर्ड्स को आपके जो आ रहे हैं टेक्निकली आपको वो उठा के लाएगा। क्या है, डीप लर्निंग टेक्निक कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क टू जनरेट द ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। क्या कर रहा है कि मतलब जिस तरह से डीप लर्निंग टेक्निक की थ्रू ये ला रहा है, लेकिन जो डीप लर्निंग टेक्निक को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क। जो ट्रांसफॉर्मर न्यूरल जो नेटवर्क है, जो डीप लर्निंग है, उससे क्या कर रहा है, इस जिस तरह से ह्यूमन किसी भी टेक्स्ट को जनरेट करता है, वैसे ही चैट जीपीटी भी उस टेक्स्ट को कर रहा है, ठीक है, जनरेट कर रहा है ऑन द इनपुट टू रिसीव इट। कि कैसे, जो आपने जो उसमें इनपुट डाला है, जो चैट जीपीटी इनपुट्स को रिसीव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही लैंग्वेज का एक फॉर्मेट आपके सामने तैयार होके आ जा रहा है, जिस तरह से ह्यूमन
लाइक ए न्यूटर जनरेट द ह्यूमन लाइक द टेक्स्ट। जिस तरह से कोई भी ह्यूमन किसी भी टेक्स्ट को लिखता है, उसी तरह के फॉर्मेट में चैट जीपीटी आपको एक टेक्स्ट को जनरेट कर कर दे देता है जस्ट ए मिनट। तो ये क्या है बेसिकली, कैसे काम करता है? ये क्या है? लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। ओपन एआई ने डेवलप किया और इसको बनाया जीपीटी 3 आर्किटेक्चर के साथ। तो ये किस तरह से बस वर्क करता है? डीप लर्निंग टेक्निक के जरिए, जिसे हम ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जो इंसान जो कुछ डालता है, जो कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, वो इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से प्रोवाइड करता है जैसे किसी ह्यूमन ने उसको लिखा। तो इस तरह से ये चैट जीपीटी वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है? ट्रेनिंग डाटा। अब क्या है ट्रेनिंग का? तो थोड़ा सा बता दें किस तरह से। चैट जीपीटी ट्रेन ऑन द मैसिव डाटा सेट टू द टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट विच इंक्लूड पोस्ट, आर्टिकल, वेबसाइट, अदर रिटन कंटेंट। क्या करता है? जो चैट जीपीटी को ट्रेन किया जाता है, जिसमें बहुत सारा मैसिव डाटा सेट है, टेक्स्ट फ्रॉम द, जो कहां से? इंटरनेट से, बुक्स से, आर्टिकल से, वेबसाइट से, एंड अदर रिटन कंटेंट। तो ये सारा जो मटेरियल है, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि इसको ट्रेन किया जाता है कि जितनी भी इंटरनेट पर है ना, और जो बुक्स, जो ऑनलाइन बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट है, और जो रिटन कंटेंट है, उससे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने ले आता है, वो दे देता है आप, ठीक है। This training data is used to teach the model about the language, grammar, fact, even some of the level of the reading। तो ये क्या करता है? ये ट्रेनिंग डाटा है, तो यूज टू जो किसके काम आता है? लैंग्वेज, ग्रामर्स के, है ना, ग्रामर्स की कोई प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करता है, फैक्ट भी आपको देता है, और जो रीजनिंग की चीज है वो भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये इसको क्या किया गया है? इसको ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग डाटा, है ना। तो ये सारी चीजों से डाटा को एकदम कलेक्ट किया गया है। कलेक्ट करने के लिए चैट जीपीटी ने इसमें यूज किया है। तो अब नेक्स्ट वन, हम लोग ये कह रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बता। तो ये क्या करता है? अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर ऑफ द चैट जीपीटी इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क, है ना। हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने बात की थी। This architecture highly effective for the natural language understanding and generation task। तो ये जो आर्किटेक्चर जो बनाया चैट जीपीटी ने, ये क्या कर रहा है? ये नेचुरल लैंग्वेजेस अंडरस्टैंडिंग जनरेशन टास्क, यानी जो भी काम हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी मैटर, जो भी टेक्स्ट हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है? नेचुरल लैंग्वेज के, जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको आज ये ऐसे एक आर्किटेक्चर बनाया है जो बहुत इफेक्टिव फॉर द नेचुरल लैंग्वेजेस के लिए होता है। क्या करता है? इस कंसिस्ट द मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म फीड वर्क फॉरवर्ड एंड न्यूरल नेटवर्क, है ना। क्या करता है? मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर डिपेंड होता है। ट्रांसफार्मर है, किस तरह से ये है बनता है, किस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। द नेक्स्ट वन, फाइन ट्यूनिंग। क्या होता है? आफ्टर द इनिशियल प्री ट्रेनिंग ऑन द लार्ज कॉर्पस ऑफ द टेक्स्ट, चैट जीपीटी इज फाइन ट्यून ऑन द स्पेसिफिक डाटा सेट टू मेक इट मोर यूजफुल टू पार्टिकुलर एप्लीकेशंस। क्या होता है? जब ये प्री ट्रेनिंग जो होता है, जीपीटी जो होता है, उसके बाद क्या होता है? लार्ज कॉर्पस ऑफ द टेक्स्ट को करता है चैट जीपीटी फाइन ट्यूनिंग फॉर स्पेसिफिक डाटा सेट टू मेक इट्स मोर यूजफुल पार्टिकुलर एप्लीकेशंस। क्या करता है फिर? जो जो डाटा सेट है उससे लाकर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। फाइन ट्यूनिंग हेल्प कस्टमाइज द मॉडल्स बिहेवियर एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक डोमेन और टास्क। तो क्या जो फाइन ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग ने इसको कस्टमाइज किया है और इसका मॉडल बिहेवियर को इम्प्रूव कर दिया है ना, और इसके टास्क को और ज्यादा इजीली कर दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, इनपुट प्रोसेसिंग। Whenever you interact with the chat GPT, you provide it with a text prompt or question। तो क्या होगा? क्या है? जब इनपुट प्रोसेसिंग कैसे करता है? जब हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वी नीड द इंफॉर्मेशन,
we write in box of chat gpt prompt. This is called the tags prompt or questions, है ना. कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. जब वी विल राइट देयर द क्वेश्चंस एंड प्रॉम्प्ट, वी विल गेट, अब जो भी हम चाह रहे हैं, है ना, उसको उसको पा जाएगा. लेकिन क्या करता है वो, समझता क्या है. The model take this inputs process, it is understand the context and intent of your queries. तो क्या समझता है वो, प्रॉम्प्ट और क्वेश्चंस को समझता है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. इनपुट प्रोसेसिंग, है ना. जब तक आप उसमें इनपुट देंगे नहीं, कुछ आप राइट करेंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, तो वो आपको आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता है, नहीं देता है. ठीक है. तो ये प्रोसेस है जनरेटिंग रेस्पॉन्सेस. तो कैसे रेस्पॉन्सेस जनरेट करता है. चैट जीटीपी जनरेट द रेस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन द इनपुट इट रिसीव. ने जो भी आपने डाला, है ना, जो भी आप इसमें लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, रेस्पॉन्सेस को जनरेट करता है. इट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड और token in the response sequence, taking into the account of the context and probability each word given the previous words. तो क्या करता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करते हैं. एक एक क्या करता है, एक रेस्पॉन्सेस जो आपके होते हैं उनको क्या करता है, जनरेट कर देता है ना. The next was sampling strategy. कैसे चैट जीपीटी यूज द वेरियस सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी टू जनरेट टेक्स्ट. ना बहुत सारे सैम्पल स्ट्रेटेजी को यूज करता है ना, उसने यूज किया, जो काम कर रहा है वो इस तरह से काम करता है. वन कॉमन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड टॉप के सैम्पलिंग, वेयर इट इज सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली वर्ड्स. तो ये उसने सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी को यूज करता है, उसमें से एक जो है टॉप के सैम्पलिंग है. टॉप के सैम्पलिंग क्या करता है, उसका क्या काम हो कि वो मोस्ट लाइकली ना, बहुत अच्छे से मोस्ट जो सबसे अच्छा वर्ड्स होता है उसको उसको फ्रॉम द लिमिट सेट तो ऑप्शंस बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटीज उसको ढूंढ कर लाता है. दिस हेल्प मेक द जनरेट टेक्स्ट मोर कोहेरेंट एंड टेक्सचुअली. तो ये क्या इसका क्या काम होता है, ये जो टेक्स्ट होता है उसको बहुत ही कॉन्टेक्चुअली बना देता है, बहुत है कॉन्टेक्चुअली बना देता है, कोहेरेंट बना देता है. तो ये सैम्पलिंग स्ट्रेटजी ये यूज करता है चैट जीपीटी, इस तरह से ये काम करता है. पोस्ट प्रोसेसिंग, द जनरेटेड टेक्स्ट मे गो टू थ्रू पोस्ट प्रोसेसिंग द इम्प्रूव द आउटपुट क्वालिटी. क्या करता है, जनरेट टेक्स्ट में गो टू थ्रू द पोस्ट प्रोसेसिंग. पोस्ट प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव, यानी पोस्ट प्रोसेसिंग का जो क्या करता है, और बहुत ज्यादा चीजों को, क्वालिटी को, आउटपुट को इम्प्रूव करता है. दिस कैन इंक्लूड एडिंग punctuations, corrections, grammar और रिफ्रेशिंग द सेंटेंसेस, है ना. तो पोस्ट प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है, जब हमने इनपुट डाल दिया तो ये पूरा देखता है कि ग्रामर क्या है, पंक्चुएशंस क्या है, करेक्शंस ऑफ ग्रामर एंड रिफ्रेशिंग द सेंटेंसेस को रिफ्रेश करता है. ठीक है. तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग, जब हमने इनपुट डाल दिया तो ये प्रोसेसिंग के पोस्ट में पोस्ट प्रोसेसिंग ये शुरू करता है. User interactions. ChatGPT continue the conversation by the talking previous action into the account. है ना. तो ChatGPT क्या है, continues the conversation by talking about the previous actions into the account. जो हमने पहले पूछा उससे भी हमें कोरिलेट, यूजर इंटरेक्ट करता रहा, मतलब बहुत ज्यादा कोरिलेटेड. यूज द इंटायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री टू जनरेट रेस्पॉन्स दैट contextually relevant and maintain the conversation. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा किस तरह से इंटायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री जनरेट. जैसे कि जो भी आपने इसमें सर्च किया है, तो ये क्या करता है, अपने क्लाउड में अपने पास के सेव करके रखता है कि आने वाले वक्त में जब आपको कोई चीज की जरूरत है तो यू कैन, आप वहां से आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी एंड मॉडरेशंस. OpenAI implements safety and moderations measure to prevent of the model from generating harmful inappropriate content. तो क्या क्या बहुत कोशिश की है OpenAI ने कि OpenAI ने क्या किया है, implement the safety and moderation measure to prevent of the model from the generating harmful. उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा
जो वो हार्मफुल जो टैग्स है वो किसी तरह से इसमें नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी चैट जीपीटी ने एकदम क्लियर कर लिया है इसकी लिमिटेशंस है कि जब आप चैट जीपीटी का यूज करें तो ये बाइस्ड भी हो सकता है, ठीक है, इसमें इररिलेवेंट टैक्स भी आ सकता है, बहुत सारी मिस्टेक आ सकती है जो जो बहुत ज्यादा डिलिमिटेशंस हैं चैट जीपीटी की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। This include the filtering out of the sensitive topic and enforcing the content guideline, है ना, जो उसकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये कंटेंट है जो टॉपिक्स है उनको क्या कर देता है, ये उसको फिल्टर कर देता है ना, सेफ्टी एंड मॉडरेशंस भी यूज करता है चैट जीपीटी, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग, चैट जीपीटी कैन बी अपडेट्स एंड इम्प्रूव ओवर टाइम एज इट रिसीव फीडबैक फ्रॉम द यूजर एंड अंडरगोइंग ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है ना, जो फीडबैक जो लोगों से फीडबैक मिल रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं वहां से जो फीडबैक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी अपनी सर्विसेज को और बेहतर बना रहा है, जिसके लिए वो लगातार क्या कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम उसका चल रहा है, यानी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। जैसे कि 4.0 जो चैट जीपीटी है वो उसमें क्या गया, उसमें बहुत सारे और फीचर्स गया, लेकिन वो क्या है, वो पेड है ना, वो लोग पेड यूज वो कैन यूज चैट जीपीटी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना कि ये जो चैट जीपीटी का हिस्ट्री क्या है, चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी कैसे काम करता है ना। चैट जीपीटी बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू काम करता है, ठीक है, एल्गोरिदम होता है, और जिस तरह से हम देखते हैं एल्गोरिदम होता है जो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पास जो भी मैटर होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से वो आता है, वो एल्गोरिदम की के आता है, उसमें न्यूरल नेटवर्क होता है। तो इस तरह से चैट जीपीटी काम करता है और काम करता है और क्रिएट करता है इस चीज को, आपके टेक्स्ट को जो आप चाहते हैं, जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी लोग मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नो अबाउट द चैट जीपीटी, बट दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपरली, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी का यूज करने के लिए हमें उसमें किस तरह के प्रॉम्प्ट्स या किस तरह के क्वेश्चंस का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानेंगे उसके सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे, आप चैट जीपीटी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब तक तो हमने जाना कि किस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं, किस तरह से चैट जीपीटी को हम यूज में लाते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से हाउ डज टीचर यूज चैट जीपीटी फॉर टीचिंग, है ना, टीचिंग के लिए किस तरह से टीचर्स टीचिंग के लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर दिस वर्कशॉप। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग एंड लर्निंग का। तो अब हमने अभी तक तो हमने जो जाना है वो चैट जीपीटी की जनरल नॉलेज जानी कि चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या, है ना। तो चैट जीपीटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, लेकिन अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसके बारे में जानेंगे कि चैट जीपीटी जो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, तो वो कैसे करता है। चैट जीपीटी के जो एक टीचर है वो किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी टीचर्स यूज चैट जीपीटी टू एनहांस लेसन्स, मैंने बताया जो लेसन्स को इनहेंस करने की है, लेसन्स की प्लानिंग है, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीजों को चैट जीपीटी कैन जनरेट। इट जनरेट डिस्कशंस एंड ऑफर्स रिसोर्सेस, डिस्कशंस के बारे में भी ये जनरेट कर देता है चैट जीपीटी। आंसर स्टूडेंट क्वेश्चंस टू गिव द एग्जांपल, है ना, जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस के आंसर है हम लोग क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद से बहुत ज्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ एंड एलोबरेट करके हम अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में वी कैन
express to the student, provides writing prompt and personalized help. क्या कर सकते हैं, राइटिंग प्रॉम्प्ट को हम पर्सनलाइज हेल्प के जरिए हम राइटिंग प्रॉम्प्ट्स को भी क्रिएट करते हैं. टीचर शुड मॉनिटर इट यूज. क्या करना चाहिए, यानी जो टीचर अगर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसको क्या करनी है, टीचर्स को मॉनिटर्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो चैट जीपीटी गलत तरीके से दे देता है. अवॉइड द एक्सेसिव रिलायंस ऑफ द चैट जीपीटी. क्या करना है, जो एक्सेसिव रिलायंसेस है उनको अवॉइड करना चाहिए. यानी बहुत सारी चीज है, बहुत सारे गलत फैक्ट जो आ जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ChatGPT empowered the teacher to harness the technology capabilities while the maintaining proactive role in the shaping the learning experience. ठीक है, ChatGPT क्या करता है, एक टीचर को empowered करता है जो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज है, मेंटेनिंग प्रोएक्टिव रोल इन द शेपिंग द लर्निंग. यानी कुछ सीखने के लिए चैट जीपीटी क्या करता है, टीचर्स को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड करता है ना, उसको एक शेप देता है. अल्टीमेटली फोस्टरिंग द बैलेंस एंड इफेक्टिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट. और क्या करता है, चैट जीपीटी की वजह से एक अच्छा एजुकेशन इन्वायरमेंट हमें, बहुत इफेक्टिव इन्वायरमेंट हमें मिलता है. ठीक है, चैट जीपीटी के वजह, वो कैसे मिलता है हम इसके बारे में आगे बताएंगे. ठीक है, बहुत सारा कुछ डिस्कशन करना है लगातार. टुडे वी विल डिस्कस इन टुमारो आल्सो ना, 2 days एंड टुमारो. तो आधा पार्ट तो आज हम फिनिश करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल डिस्कस इन टुमारो. ठीक है, तो ये जो क्या है, अब हमने जो समझ लिया कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी जो टीचिंग के लिए कैसे है काम, मतलब जो टीचर है वो किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करता है. तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, है ना. वी विल डिस्कस, वी विल एलोबरेट द नेक्स्ट. तो सबसे पहले यूज चैट जीपीटी एज ए स्मार्टर सर्च इंजन, है ना. सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं. वी आर यूजिंग गूगल, विंग and Yahoo, and there are a lot of the search engine in internet. ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी कर रहा है, चैट जीपीटी चैट बॉट के साथ साथ सर्च बॉट और इनहेंस सर्च भी करता है. यानी क्या, यानी कि जो आप चाहते, क्या होता है जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपने कोई एक वर्ड डाला, कोई आपने कोई प्रॉम्प्ट लिखा, कोई सब्जेक्ट लिखा, कोई टॉपिक लिखा, तो आपको वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ द ऑप्शन इन द गूगल. लेकिन चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी इज ए स्मार्टर सर्च इंजन है. क्या है, स्मार्टर है ना. क्या करता है, जो आप चाहते हैं वो सिर्फ वही प्रोवाइड करता है. जैसे कि चैट जीपीटी इज एन एआई पावर्ड चैटबॉट that can be used as a search engine. It can help you find information on the wide range of the topics from news, current events to the history and science. तो ये क्या करता है, ये आपको हर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड कर देगा, है ना. तो सर्च बोर्ड है ये सर्च स्मार्टर सर्च इंजन है, इसलिए हम इसको स्मार्टर सर्च इंजन कहते हैं. ठीक है, अनलाइक द ट्रेडिशनली सर्च engine, ChatGPT can understand the natural language queries and provide more personalized responses based on your specific need. By using ChatGPT as your search engine, you can save time and get more accurate result. ठीक है, क्या है दूसरे जो मैंने बताया, दूसरे सर्च इंजनों में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है सर्च करने में. लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी. जो आपको नेचुरल लैंग्वेज है जो इसमें इनपुट डालेंगे वो आपको क्या करता है, वो आपको उन उन क्वेरीज या उन इनपुट्स के जरिए ये आपको स्पेसिफिक जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है. बाय यूजिंग चैट जीपीटी सर्च एज योर सर्च इंजन, जहां पर आप टाइम भी बचा सकते हो और मोर एक्यूरेट रिजल्ट भी आप पा सकते हो. तो इसीलिए
हम इसको चैट जीपीटी को एज ए स्मार्ट सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन तो वो भी है, लेकिन हम इसको और स्मार्ट सर्च इंजन करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं बस वही मिलेगा, अननेसेसरी हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज क्रिएट टेक्स्ट पैसेज। ChatGPT can help you generate the reading passage on the various topic. What specific topic or subject would you like to passage to the about? Let me know, and I will do my best providing you with the informative and engaging content. For example, write imagine about topic again. तो ये क्या करता है, क्रिएट टैग। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अभी तक तो जो पढ़ा, अभी तक तो हमने समझा, वो हमने एक थ्योरेटिकल समझा। हमने समझा कि हाउ चैट जीपीटी वर्क, व्हाट इज चैट जीपीटी एंड हिस्ट्री ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जो टीचर्स के लिए चैट जीपीटी कैसे काम करता है ना, क्या क्या इसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। पहला हमने स्मार्टर सर्च इंजन, तो यू कैन फाइंड आउट देयर जो भी आप चाहते हैं ना, और जो भी चाहते हैं आप, यू कैन सर्च थ्रू द चैट जीपीटी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वन, वी विल क्रिएट टेक्स्ट पैसेज। तो क्या करते हैं, तो क्रिएट टेक्स्ट पैसेज को हम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसे कैसे, जनरेट रीडिंग पैसेज ऑन वेरियस टॉपिक्स। What specific topic or subject would you like to passage to about? Let me know, and I will my best of the providing you with the informative and engaging content. ठीक है, कोई भी पैसेज है वहां पर आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसेज अबाउट द टॉपिक एट ग्रेड लेवल एंड डी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तो अभी तक सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग चैट जीपीटी को लॉग इन कर सकते हैं। क्या लॉग इन करके मैं बताऊं, एवरीवन कैन लॉग इन चैट जीपीटी फ्रॉम बिगनिंग, आई विल टोल्ड यू। शुरू से बताऊं मैं आपसे कि आप कर लेंगे इसको ना? एक ही बार आप कर दो प्लीज। कर दें, ओके ओके मैं ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैट जीपीटी अभी हमारा लॉगिन है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, लॉग आउट यार। देखिए, तो जब हम चैट जीपीटी कुछ करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल ही आपको, यू कैन गो गूगल, सर्च यार चैट। जब आप चैट जीपीटी यहाँ पर सर्च करेंगे आपको, ठीक है, सर्च करना है और इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यू कैन गो चैट जीपीटी, चैट जीपीटी विल बी ओपन यार। ठीक है, इस तरह से चैट जीपीटी ओपन हो गया है यहाँ पर, जो भी है लॉगिन। लॉगिन में आपको क्या करना है, जो भी आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ईमेल आईडी है, तो इस तरह से आप ईमेल आईडी करके आप साइन इन भी कर सकते हैं और साइन अप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आप किससे करना चाहते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और कंटिन्यू विद एयरटेल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने या फिर कंटिन्यू विद द साइन अप, यानी पहले आप इसमें अपना आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी अकाउंट है, साइन अप करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो कंटिन्यू विद द
गूगल, आप गूगल के साथ आप कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। जब गूगल के साथ आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा। जो भी आपके वहाँ पर ईमेल आईडीज होंगे, तो आप ईमेल आईडी से आपको यहाँ से, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल भारत डिजिटल एकेडमी है। तो जब मैं भारत डिजिटल एकेडमी पे यहाँ पर, जब यहाँ पर भारत डिजिटल एकेडमी पे जब मैं करूँगा, तो ये मेरा इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन लेकिन अब एक्चुअली मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी पे हूँ, तो इसलिए अब ये क्या करेगा, जब आप गूगल पर इन करेंगे, ठीक है, साइन इन करेंगे गूगल विद हेल्प ऑफ द गूगल अकाउंट, तो वहां पर आपसे ना एक वेरिफिकेशन आएगा। तो वो स्टेप कब होगा, जब अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो नया अकाउंट बनाऊंगा, तो वो एक स्टेप और आएगा, वो स्टेप होगा वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन क्या है कि आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो जब आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वो वेरीफाई कर देगा, तो इसी तरह से आपका वो इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इंटरफेस सामने खुल के आएगा, तो यू कैन यूज हियर। ठीक है, तो अब हम लोग किस पे बात कर रहे थे, हम लोग तो बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे क्रिएट टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज को आप कैसे क्रिएट करें, तो बहुत सिंपल तरीका है, मैसेज अबाउट, जिसके बारे में आप मैसेज मैसेज हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख दिया है। ये मैसेज अबाउट टॉपिक लिखना है आपको, ग्रेड लेवल एंड रीडिंग लेवल, ग्रेड लेवल एंड रीडिंग लेवल क्या है, तो मैसेज लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल, हमने चैट जीपीटी, ठीक है, राइट मैसेज ऑन, तो अब देखिए, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पे हमने क्या कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक पैसेज, राइट पैसेज फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रेड 12, या तो 12th में आ जाए, ग्रेड 12 या ग्रेड, और ग्रे क्या, ग्रेजुएशन, और यू कैन राइट हियर पीजी लेवल। ठीक है, तो जब आप राइट है फ्रेंच रेगुलेशंस फॉर द ग्रेड पीच लेवल, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कोई पैसेज करेंगे, तो ये एक तरह से ये जो है ना, ये एक प्रॉम्प्ट है, या फिर यू कैन राइट हियर प्रॉम्प्ट, काइंडली प्रोवाइड मी पैसेज, ठीक है, पैसेज फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द ग्रेट पीच लेवल। तो अब जब यहाँ पर जिस तरह का अगर हमें सर्च करना है ना, कोई पैसेज के लिए, तो यू कैन राइट दिस प्रॉम्प्ट, काइंडली प्रोवाइड मी द पैसेज टू फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द ग्रेट, और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से किसी तरह का भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये प्रॉम्प्ट ही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक पैसेज लिख दिया, तो क्या कर दिया, प्रे स्कूल प्रेगेंटर लेवल पीजी, ये पीजी मतलब ये समझ रही है, पीजी ये समझ रहा है कि प्रे स्कूल और प्ले किंडर जर्नी, तो हमें इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट पीजी,
पोस्ट क्या करना, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये क्या कर देगा, तो अब ये जो प्रे स्कूल और प्रे किंडर थे ये हटा देगा ये। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अभी तो हमारा क्या था वो उस हिसाब से आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, टेक्स्ट को और मॉडिफाई कर दिया और एक पूरा पैसेज इन्होंने जस्ट ए सेकंड में आपको पूरा पैसेज लिख दिया क्या एग्जैक्टली, और किस लेवल का लिख दिया, पीजी लेवल का लिख दिया। लेकिन जब हम इसको पीजी लेवल को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हम ये इसे कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट हियर काइंडली रेगुलेशन ऑफ द ग्रेड, वो पीजी लेवल को हटा के अगर हम कहेंगे 12 लेवल, 12 ग्रेड 12, ठीक है, 12 लेवल, तो ये एकदम बदल देगा, यानी कि जो 12 लेवल का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का 12 लेवल का जो ग्रेड होगा उसके हिसाब से ये पैसेज को राइट डाउन, देखिए आप देख लीजिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन विच इज द स्पेन पूरा दे दिया, लेकिन अभी इससे पहले कुछ दूसरा था, लेकिन आप जनरेट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि अगर आपको कुछ एडिट करना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट डालने के बाद अगर आप एडिट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ना जैसे कि सेव एंड सबमिट है ना, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा इन्होंने पूरा ही मतलब वो जो चेंज कर उसका मैटर अकॉर्डिंग जो जो दे दिया ना, वो 12 के अकॉर्डिंग दे दिया, ठीक है ना, 12 के अकॉर्डिंग पूरा पैसेज दे दिया। इन द कंक्लूजन, देखिए जो मैं बता रहा था ना आपको, जो आर्किटेक्चर था 3.5 का, जो आर्किटेक्चर ये तो अभी आपका दिया नहीं है ना, मैं अभी आपको और दूसरा दिखाऊंगा तब देखा। इन कंक्लूजन, the French Revolution was a complex and transformative period in history. It began as the quest of the liberty and equality, but descended into violence and political turmoil. Its legacy, however, endured in the principles of the modern democracies and the human rights, making it crucial chapter in the story of the, ठीक है, तो ये क्या गया, देखिए, feel free to use the passage for your 12th grade level study or assignment related to the French Revolution। तो इन्होंने एक वो भी दे दिया, एक हिंट भी दे दिया, नोटिस भी, ठीक है, तो ये हम लोग यूज कर, इस तरह से हम लोग करने का मतलब है पैसेज, तो हम लोग कैसे कोई भी पैसेज किसी भी क्लास के लिए हम लोग कर सकते हैं, बस एक कॉमन सी चीज है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ये करना है कि भी हमें ये चेंज करना है, यानी जो आपने ये लिखा है ना, काइंडली प्रोवाइड मी द पैसेज फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशंस फॉर द ग्रेड 12, तो ये पेन का जो निशान दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा, आप यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये जो देखिए ये जो मैटर है ना, ये यहाँ पर हमारा सेव भी हो जाता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, हर इसमें ऐसे ही होगा, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई न्यू चैट क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये जो चैट जीपीटी का फॉर्मेट है, ये डिफॉल्ट है 3.5, चैट जीपीटी 3.5, लेकिन अभी जो पेड वाला जो वर्जन है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ग्रेड टू द प्लस, जो प्लस है पेड वाला वर्जन है, वो पेड वाला वर्जन क्या है, ठीक है, फ्री प्लान ये है, चैट जीपीटी प्लस ये है, ठीक है, चैट जीपीटी 4, तो ये क्या जो पेड वाला वर्जन है इसका यूएसडी कितना, $20 पर मंथ का इसका चार्ज जाता है, तो ये क्या आता है, एक्सेस द चैट जीपीटी मोस्ट कैपेबल मॉडल्स, फास्टर रेस्पॉन्स स्पीड, exclusive access, data feature like browsing, like advanced data analysis, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है, लेकिन ये क्या है, ये फ्री वाला प्लान है, योर करंट प्लान फ्री है, एक्सेस टू योर चैट जीपी 3 मॉडल, स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स स्पीड, रेगुलर मॉडल अपडेट्स, है ना, तो ये फ्री वाला है और ये पैसे वाला है। जब अगर पैसा देंगे आप, उसमें चैट जीपीटी 4 आएगा, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा फीचर, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स की जरूरत है तो आप पेड वाला ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज द फ्री प्लान, और फ्री प्लान में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, देखिए हमने यहाँ पर डाला, और ये हो गया हमारी हिस्ट्री है, जो भी हमने जहाँ भी सर्च किया है ये सब हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है ना, ये हमारा लॉगिन है। और जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये चाहते, जैसे अगर हम इसके बारे में नहीं चाहते, दूसरा हम
एक नए 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 चैट तो यहाँ पर न्यू चैट आ रहा है। जब हम न्यू चैट आएंगे तो ये जो हमारा चैट है, ये हमारा चैट यहाँ पर सेव हो जाएगा और हम दूसरे चैट पर दूसरा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज यर द अदर अनदर चैट। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने समझ लिया कि किस तरह से हम पैसेज क्या कर सकते हैं, क्रिएट पैसेज। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, एग्जाम्पल पैसेज अबाउट किसके बारे में पैसेज चाहिए, आप टॉपिक लिखिए, लेवल लिखिए और रीडिंग लेवल क्या है। ठीक है, रीडिंग लेवल क्या है, वो सारी चीजें अगर आप लिख देंगे उसमें, ये प्रॉम्प्ट है, तो यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्टली पैसेज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है ना, क्या कर देंगे, जनरेटिव रिव्यू क्वेश्चन एस एस कॉम्प्रहेंशन। ठीक है ना, कोई कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है ना, उससे आपसे क्या करना है, कोई भी क्वेश्चंस आपको उस कॉम्प्रहेंशन से लेना है, तो यू कैन, here are the some questions you can ask excessive your understanding of the text. What was the main idea that the author was trying to convey? Could you identify the key supporting details present in the text? What was the author's purpose to writing this text? Can you explain the significance of the informations presented in the text? What were the most important takeaways from the text? Did the text enhance your understanding of the subject matter? If it is did, how, how, if not, why? Where were there any parts of the text that were confusing? If so, which parts and why? How does the next relate to your prior knowledge experience with the subject matter? What questions or concern do you will still after reading the text? Would you recommended this text to other? Why or not? ठीक है, तो ये क्या है, ये जनरेट रिव्यू क्वेश्चंस टू एक्सेस द कॉम्प्रिहेंशन। जो भी कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको इसमें डाल गया और ये सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम किसी भी एक टॉपिक के बारे में, तो आप लोग काइंडली राइट डाउन योर टॉपिक रिलेटेड एनी टॉपिक रिगार्डिंग, जो हम सर्च कर ले इसमें कोई टॉपिक आप अगर देना चाहते हैं तो राइट डाउन इन चैट बॉक्स प्लीज, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टैक्स हम ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी बुक का ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी बुक का टैक्स ले सकते हैं, राइट डाउन एनी बुक एनी एनी टैक्स है, कोई भी टैक्स अगर आप लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी टैक्स, फॉर एग्जाम्पल एनी एनी स्टोरी, any book writing you can write down here. Yes, yes ma'am, science technology method for B.Ed program. Okay ma'am, librarian role in the present scenario. Okay ma'am, देखिए फॉर एग्जाम्पल साइंस टेक्नोलॉजी मेथड फॉर द प्रोग्राम, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए वो तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद हम इसमें क्या लिखते हैं कि काइंडली, अगर काइंडली भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, काइंडली टू बाई, क्या 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 इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्रेहेंशन, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में काइंडली प्रोवाइड मी कॉम्प्रेहेंशन साइंस टीचिंग एंड मेथड फॉर द B.Ed प्रोग्राम। ठीक है, तो B.Ed प्रोग्राम,
ठीक है। तो अब ये, अब हमने पहले हमने क्या, कॉम्प्रिहेंसिव को हम सर्च करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव के अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। अब रिटिन क्या है, अब क्या है, written। अब हमने जब इसे, अब जब हमने इसको एंटर किया तो ये देखो कॉम्प्रिहेंशन आपको क्रिएट करके दिया। देखिए अब ये क्या कह रहा है, वो जो मैंने आपको बताया ना आर्किटेक्चर, देखिए ये आर्किटेक्चर है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इसने कह दिया कि ये जो आपने टॉपिक डाला है, I apologize for the any inconvenience, but I can't provide the verbatim expert from the copyrights text, including specific content from the books written by the author. However, I can offer you the summary or some general information on science teaching method for B.Ed program, as well as suggest some popular authors and textbook in the field of the science and education that you can explore more and depth information। ठीक है, तुमने कहा जनरल नॉलेज के बारे में तो मैं दे सकता हूँ, ये कॉपीराइट का मामला है तो इसलिए मैं आपको कोई कॉम्प्रहेंसिव किसी भी ऑथर का दे नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल जो मैटर है, और मैटर में हमने क्या किया है, हमने किया है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैटर आ गया, मैटर से हमने किया वहां पर जो हम लिख रहे थे कि हमने क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिखे यहाँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन लिखे, फॉर एग्जाम्पल हम आज कर रहे हैं इससे, क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने किया गया। अब वो जो हमारा ये मैटर है, इस मैटर को हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर, ठीक है, कहा, कहा कि, क्या कहा कि what was the main idea that author was trying to convey। तो देखिए क्या कह रहा, ऑथर तो है नहीं, हम कॉम्प्रेंस से किसी टेक्स्ट बुक का ले लेंगे, वो बात अलग है, अलग से फिर हम टेक्स्ट बुक है यहाँ पर एज ए जस्ट है बता रहा। तो आप ये क्या क्या कहेगा, देखिए अब देखिए ये बता दिया जो भी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, the main idea that the author is conveying in this text in overview of the effective science teaching method of the B.Ed Bachelor of Education programs. The author discussed various pedagogical approaches and strategies that is the commonly need of the engaging students promoting learning। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं यार हम तो एक एक क्वेश्चन हमने तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, जितने भी क्वेश्चन है हम सबका सबका क्या कर रहे हैं, आई वांट वी वांट टू आंसर। तो हम देखिए क्या करते थे, अब जितने भी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये सारे जो तो ये क्या करेगा, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टेक्स्ट में से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। देखिए
शॉर्ट आंसर जितने भी क्वेश्चंस के ना, could you identify the supporting detail present in the text? The key supporting detail in the text include the specific science teaching methods such as the hand-on experience, inquiry with, देखिए, can you explain the significance of information present in text? जितने भी क्वेश्चंस का था, would you recommend this text to other, why and not? Yes, I would recommend this text to educators, B.Ed students and anyone interested in science education. It offers valuable insights into the effective teaching method and provides reference to respected authors and textbook for the further explorations about its use, resource for the improving science and education practice. ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से, जैसे कि ये तो एक कोई टॉपिक था, टॉपिक से हमने टेक्स्ट को क्रिएट किया, लेकिन जब कोई हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश की, चाहे हिंदी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो इस तरह से टेक्स्ट बुक क्या कर देगा, आप जब किसी भी टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ या पूरा चैप्टर यहाँ पर अगर आप इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं और क्वेश्चंस आप इसमें इनपुट डालेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर लिख के देगा, ठीक है। और क्वेश्चंस आप किसी भी उसके कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से एक एक क्वेश्चन का था, मैं सारे क्वेश्चन डाल दिया टेक्स्ट में और सारे क्वेश्चंस का आंसर आ गया। तो अब आप इस वाले स्लाइड्स को आसानी से समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं ना, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन इसका, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट क्या है आगे, आगे है, देखिए इसके बारे में सारा आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। Here are some questions you can ask the access your understanding of the text. यानी टेक्स्ट के बारे में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। कि अगर आपका बहुत बड़ा ज्यादा बड़ा मैटर है 4 5 10 पेज का, तो वो हो सकता है चैट जीपीटी इतना बड़ा मैटर नहीं ले, तो 2 3 4 5 का मैटर है, पेज का मैटर है, तो चैट जीपीटी कैन आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो क्या करता है, जनरल रिव्यू क्वेश्चंस टू एक्सेस कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन के जितने जो है उसके जो जनरल क्वेश्चंस है वो आपको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से आंसर दे सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जनरेट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट, देखिए मैंने अभी जो बताया ना, तो अब क्या है, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने लिया और उससे हमने क्वेश्चंस बनाए, तो देखिए कैसे क्रिएट करता है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, referring feature of the chatbot model called GPT, which is capable to generate the questions based on the given text. It can be create lessons questions, very simple language and change according to your need. Right topic for generate questions. Okay? कोई भी क्वेश्चंस का, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने हम एक नया चैट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक लिखते हैं, क्या टॉपिक है, तो अभी चैट में आया था, तो लाइब्रेरियंस रोल इन प्रेजेंट सिनेमा। तो हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, एक एक टॉपिक ले लिया, ट्रांसलेट लाइब्रेरियंस रोल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो हम जब लाइब्रेरियन रोल्स एंड प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में हमने करेगा, काइंडली राइट या काइंडली क्रिएट या काइंडली जनरेट, ठीक है। तो क्या कर देंगे, काइंडली जनरेट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दिस टॉपिक लाइब्रेरी रोल्स इन द सिनेरियो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, आप ये देखिए, यही चैट जीपीटी का कमाल। और ये सारे क्वेश्चंस बना, एक टॉपिक दिया आपने और ये सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा,
है, लेकिन फ्यू सेकेंड यू कैन फाइंड आउट देयर कितने, देखिए एक टॉपिक पे आपके पास तो ये देखिए 20 क्वेश्चंस आपको एक चैट जीपी ने आपको एक किसी टॉपिक पे, हमने बहुत सारा मैटर भी नहीं डाला, हमने बहुत सारे टेक्स्ट को भी पेस्ट नहीं किया, लेकिन हम जस्ट अपने वी अप्लाई हियर ओनली टॉपिक्स लाइब्रेरियंस रोल इन द प्रेजेंट सिनेरियो और फाइंड आउट। देखिए हमने क्या है, हमारा आउटपुट क्या निकला, हियर इज ए 20 क्वेश्चंस, अनबिलीवेबल। क्या है, हम हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतने कम टाइम में इतने ज्यादा क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं किसी एक टॉपिक के लिए। लेकिन चैट जीपीटी ने क्या कर दिया, चैट जीपीटी ने जस्ट फ्यू सेकंड हियर इज अ क्रिएट 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। क्या है, रोल ऑफ द लाइब्रेरियंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस है, हाउ है, how has the role of the librarian evolved in digital age? What are the key responsibilities of librarian in today's libraries? How do librarians contribute the promoting information literacy in their communities? What challenges do librarians face on the mode in the easy to online informations? How to technology impact the way librarians organize the manage library collections? What role of the librarians play the preserving and achieving digital informations? How do librarians assist the patrons in finding the, evaluating the credible and online resources? In what ways the librarians support lifelong learning and education in their communities? And what is the librarian's role in promoting diversity and inclusion in library collection services? How can librarian adopt the changing community need expectation to the remain relevant? What, देखिए, what skill and qualifications are required for the someone pursuing career as a librarian today? How do the librarians engage with the emerging technologies like the virtual reality, artificial intelligence, and augmented reality in this world? देखिए कितना मॉडर्न, जो बहुत ज्यादा मॉडर्न, जो हाउ डू लाइब्रेरियन एंगेज विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, है ना, like virtual realities, artificial intelligence and augmented reality in their works, है ना। बहुत ज्यादा मॉडर्न क्वेश्चंस भी आप मतलब बहुत ज्यादा टाइम और लगाना पड़ेगा। देखिए हाउ डू द लाइब्रेरियन कलेक्ट collaborate with the other communities, organizations and institutions to the enhance their services? What strategies do librarians use to promote the reading and literacy among the different age group? How has the COVID-19 pandemic affected the role of the services of librarians? What are the some innovative programs or initiatives that librarians have implemented to the engage with their communities? How do librarians balance the uh, preservations of the traditions library resources with the adoptions of new technology? What the technical considerations do the librarians face in the term of the privacy and data security in the digital age? How can librarians help bridge the digital divide in the undeserved communities? What are the future trends and challenges that librarians may encounter in their roles? ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस को क्रिएट कर दिया, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को क्रिएट कर दिया। लेकिन अब हम क्या करें, अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को के हम आंसर भी चाह रहे हैं, तो आप क्या कर दो, पेस्ट हियर द टेक्स्ट और काइंडली राइट द आंसर। और आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 200 वर्ड्स में दो, 100 वर्ड्स में दो, या आपने वर्ड्स मेंशन ही नहीं किया है? तो अगर आप चाह रहे हैं काइंडली राइट आंसर द ऑल क्वेश्चन इन कितने में, 100 वर्ड्स।
ठीक है, तो आपको क्या कर देगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर चैट जीपीटी जस्ट ए मिनट में आपको 100 में दे देगा। ठीक है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये जो आंसर है वो आंसर है यार, ये आंसर तो सही नहीं है, हमें और ज्यादा एलोबरेट करना है, इन द डिजिटल है, देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर काइंडली प्रोवाइड द आंसर, आंसर ऑल, आंसर ऑल क्वेश्चन, नहीं, वी विल काइंडली राइट द आंसर, आंसर ऑल, राइट द आंसर, ठीक है। तो अभी क्या, ईच क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन है ना उसके बाद में इन 100 वर्ड्स, अब क्या हम कर लिख रहे हैं 200 वर्ड्स। ये सारे आंसर तो दे दिए वैसे आपको, लेकिन हम थोड़ा सा कर देंगे। देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत इजीली तरीके से मिल जाएगा। तो लेकिन अब इसमें देखना आपको ये है, चेक ये करना है जो आंसर है तो आपके अकॉर्डिंगली है नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। तो देखिए अभी यहाँ पर आगे ना एक ये टेक्स्ट हो गया, ये रुक गया, तो अगर हम इसमें यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, तो कंटिन्यू जब कर देंगे, कंटिन्यू, तो जब कंटिन्यू कर देंगे तो ये फिर क्या होगा, आगे का क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी कंटिन्यू है। तो ये 5-5 क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 5-5 क्वेश्चन को कर रहा है क्वेश्चन। तो ये वो हमने आर्किटेक्चर बताया था ना आपको, ये आर्किटेक्चर ये है, तो ये फॉर्मेट में दे जाए ना, पहले ऐसा नहीं होगा ना, पहले एकदम हाँ, सिंपल होगा। जी मैम, हेलो। जी। यस जी मैम। सर, तो इससे तो हम लोग आर्टिकल लिखने में हेल्प ले सकते हैं। हाँ मैम, बहुत कुछ हेल्प ले सकते हैं, ये आपके पास, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या हेल्प लेना चाहते हैं। लेकिन बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है मैम, आपको ना जी अंधविश्वास नहीं करना है इस पर। मतलब आपको जी लग रहा है जी यार इतना कुछ लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा है, लेकिन आपको जी एनालाइज करना है इसको। एनालाइज क्या करना है कि आपको देखना है कि जो आप इंफॉर्मेशन चाह रही है, जो क्वेश्चन है उससे आप इंफॉर्मेशन चाह रही हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो चैट जीपीटी क्लियर एवरीथिंग कि इसमें ये बायस भी हो सकता है, और इसमें इनएक्यूरेट आंसर भी हो सकता है, इनएक्यूरेट वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि आपका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है ना, और जो ग्रामर ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, वो तो बहुत ही सही होती है, वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से, तो मैं आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज के बारे में, है ना। इस तरह से हम आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, और कोई टेक्स्ट से क्वेश्चन ले सकते हैं, और उसके हम आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है ना। जी। तो एक चीज ये हो गई, अब दूसरी चीज पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी दूसरी चीज, जनरेट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमने ये समझ लिया टेक्स्ट से कैसे जनरेट होता है क्वेश्चंस, है ना। और हम टेक्स्ट से जो जनरेट क्वेश्चंस होता है, तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर को कैसे हम क्रिएट कर लेते हैं, कैसे हम
चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते हैं, देखिए इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रॉम्प्ट का, जो आप पूछना चाह रहे हैं चैट जीपीटी में इतना इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है जो आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेज भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, चैट जीपीटी को ये पता होना चाहिए कि आपकी डिजायर्स क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को आप समझाने में नाकाम साबित होते हैं, या आप उसको समझा नहीं पाते, या अपने टेक्स्ट को आप सही से लिख नहीं पाते, आप जो चाहते हैं कि हमें जो चाहिए वो आप लिख नहीं पाते हैं, तो चैट जीपीटी आपको वही इनपुट देगा जो उसकी समझ में आएगा जो आपने डाला हो, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रॉम्प्ट है, और जिसने भी प्रॉम्प्ट को लेकर प्रॉम्प्ट के बारे में सीख लिया है ना, वो चैट जीपीटी से आज के दौर में चैट जीपीटी जो है वो ना सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में, बल्कि बिजनेस में, ठीक है, मार्केटिंग में, और हर चीज को क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया जाए। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो बहुत लोगों को हर चीज में हेल्प करता है। तो पूरा टीचिंग में किस तरह से हेल्प करेगा वो हमने आपको एक टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग सारी चीजों को, सारे मैटर्स को कलेक्ट किया है, और हमने ये सारी स्लाइड को उसके ही अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया। ठीक है, तो जनरेट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट के कैसे जनरेट होता है वो हम के बारे में हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज चैट जीपीटी कैन बी यूज एज अ रेसिपी बिल्डर। रेसिपी क्या होती है? रेसिपी बिल्डर क्या होता है? मतलब जो चीज हम जैसे कि जो चीज हम चाह रहे, जैसे कि लेसन प्लान, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर, ठीक है, इसी तरह से एक तरह से ना रेसिपी बिल्डर होता है। रेसिपी बिल्डर मतलब एक एजुकेशन में हम चैप्टर्स को किस तरह से सर्च करेंगे, ठीक है ना, लेसन का एरिया का टॉपिक, और लेसन एरिया क्या होना चाहिए, क्लास एंड ग्रेड लेवल क्या होना चाहिए, तो ये क्या है, ये रेसिपी कहलाता है, जिसमें लेसन प्लान भी आता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर भी आता है, एजुकेशन हैंड आउट, ठीक है ना। तो अब दो दो या तीन जितने भी लोग हैं, जस्ट थोड़ा सा एक दो या तीन चार टॉपिक लिख दीजिए आप, जिससे मैं आपको एग्जैक्टली आपके टॉपिक का ही सर्च करके दिखा सकूं, उसको हम करके दिखा सके, ठीक है। ये टॉपिक और लेसन क्या एरिया क्या होना चाहिए, टॉपिक कोई भी होना चाहिए, आप जरूरी नहीं है कि आप 12th लेवल का होना चाहिए, 9th लेवल का होना चाहिए, 6th लेवल का होना चाहिए, क्लास कुछ भी हो सकता है, ग्रेड लेवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल हमने किया कि हम सबसे पहले डिस्कस अबाउट द लेसन प्लान, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल हम लेसन प्लान के बारे में क्या करें, ठीक है, क्रिएट हम जब एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। Write a lesson plan on caste system in India for क्लास में कोई भी लेसन प्लान क्रिएट करने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट हियर द कास्ट सिस्टम इन इंडिया फॉर फॉर
ठीक है। तो राइट लेसन प्लान ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया का जो लेसन प्लान है, भाई हमारे माइंड में कोई चीज है नहीं है, बहुत देर में लगेगा, टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन जब हम देखेंगे राइट लेसन प्लान ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया फॉर द ग्रेड बीए, किसके लिए? बीए के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, किसी के भी लिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया मोस्टली तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ राइट राइट द लेसन प्लान ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया फॉर ग्रेड बीए, ठीक है, किसके क्या करेगा ये देखिए, क्या कर देगा ये। देखिए ये मैटर बनाने के लिए आपको अ, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, जस्ट इमेजिन। इतना जो प्लान क्रिएट किया, देखिए पूरा एकदम एक एक चीज को उसने टाइटल अंडरस्टैंडिंग द कास्ट सिस्टम इन इंडिया ग्रेड लेवल बैचलर ऑफ आर्ट्स, ड्यूरेशन 3 सेशन, 45 मिनट्स ईच, है ना। तो टीचर्स को बता दिया इसने कि जो टाइटल्स है ना, अंडरस्टैंडिंग द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ग्रेड लेवल क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ड्यूरेशन क्या है 3 सेशन, 45 मिनट्स ईच। 3 सेशन का जो है वो इसका 45 मिनट का है, ठीक है, उन्होंने टाइम भी दे दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या बता दिया, देखिए ऑब्जेक्टिव, बाय द एंड ऑफ द दिस लेसन प्लान स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या कर देंगे इस लेसन के बाद, क्या 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 सीखेंगे बच्चे? डिफाइन डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, identify the historical origin and evolutions of the caste system, analyze the social, economic, and political implications of caste system in modern India, discuss the efforts and movement aimed to addressing the caste-based discriminations, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या उन्होंने क्या मटेरियल क्या है, उन्होंने कहा कि मटेरियल क्या होना चाहिए इसमें, देखो मटेरियल्स भी दे दिया इसमें, whiteboard and marker or the digital presentations platform, handouts or digital resources with the relevant articles, images and videos, writing material for students, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए सेशन 1 में उन्होंने क्या कर दिया, द सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू द कास्ट सिस्टम, जो हमने ऊपर पढ़ चुका कास्ट सिस्टम, हाँ देखो कास्ट सिस्टम के बाद उन्होंने क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है, to introduce the sub student to the concept and historical origins of the caste system. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यानी जो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना है इसमें, सेशन फर्स्ट में, ठीक है, सेशन फर्स्ट में ये कराना है, ठीक है ना। सेशन सेशन फर्स्ट में क्या कराना है, द बिगिन विद द डिस्कशंस ऑफ द स्टूडेंट प्रायर नॉलेज ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है, present a brief overview caste system using multimedia presentations or whiteboard, highlight the key characteristics and divisions within the caste system, provide the historical context, explaining how to the caste system evolved over the centuries, engage the student in the class discussion to clarify and questions to the misconceptions, ठीक है। तो और सेशन 2 इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, और इसमें क्या ऑब्जेक्ट है इसका, क्या है, टू एक्सप्लोर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल implications of the caste system in modern India, ठीक है। Divide the class into small groups and provide the each group with the caste studies articles or experts from the books and illustrate the impact of the caste system in various aspects. In this group, students should discuss, analyze provide the material focusing on how the caste system affects the education, employment, and social mobility and political representations. Each group should prepare a short presentation, summarize their finding, and facilitate the class discussion, systemize the insight gained the group presentation. अब सेशन 3 में मूवमेंट्स एंड इनिशिएटिव, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू एफर्ट्स ऑफ द मूवमेंट एंड, ठीक है,
present to our outline. Either discuss prominent figure like B.R. Ambedkar, show the relevant videos, clipping and documentations, and marginalize the caste group and progress made through the social reform movement, engage students in the reflections and discussion. As session on the role of the education's awareness and government political in addressing caste-based discriminations. ठीक है, अब उसके बाद होमवर्क भी दे दिया. होमवर्क असाइनमेंट क्या है? Ask the student to research and write the short essay, 500 to 7 words, on one aspect of the caste system in India, such as its historical origins, its impact on the contemporary society, or the specific social reform movement, encouraging the including the relevant example of the site, the source of the society. ठीक है, assessment देखिए. Assess the students based on their class participations, group presentations, and quality homework assignment. Use rubric and evaluate the understanding of the caste system, its implications, and their ability critical analyze the issues. By the end of this sessions, a plan to student should have deeper understanding of the caste system in India, his historical context and contemporary significance of Indian society. They should also be aware the efforts made to address caste-based discriminations and promote social justice. तो ये देखिए पूरा एक तरह से एक लेसन प्लान कर दिया. ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इस टॉपिक्स को मैं ये जो लेसन प्लान है, इस लेसन प्लान को मैं क्या करूं, इस लेसन प्लान का भी आंसर मुझे चाहिए, किस किस तरह से कास्ट सिस्टम डिफाइन होता है. तो आप बहुत इजीली तरीके से यू कैन paste this first topic, define and explain the caste system in India. ठीक है, kindly explain, define and explain the caste system. Kindly the caste system in complex and hierarchical structure, ये पूरा डिफाइन है. तो आप देखिए उसमें क्या है, here the more detailed explanation of the caste system in India. कास्ट हायरार्की ये पूरा दे दिया. ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, दलित, शेड्यूल कास्ट, जाति, इंडोगेमी, occupational specialization, discrimination of the social restrictions, local and social reform, contemporary issues. ठीक है, तो अभी इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम तो दे दिया, लेकिन क्या नहीं किया इन्होंने, क्या डिफाइन नहीं किया. तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसको डिफाइन नहीं किया है, तो यू कैन edit kindly define and explain the caste system in India. ठीक है, ये तो उन्होंने भी फिर से वैसे दे दिया. लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डिफाइन करने के लिए. तो हम क्या कर ले, इसमें हमें डिफाइन नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, डिफाइन caste system in India, right? Some ठीक है, तो क्या है सोशियोलॉजी या कास्ट सिस्टम को भी सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है कास्ट सिस्टम, है ना. तो आपके अगर डिफाइन
कास्ट सिस्टम इन इंडिया बाय द सम सोशलिस्ट। तो क्या कर देगा, देखो ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा। देखो MS श्रीनिवासन ने क्या कहा, ठीक है, ठीक है, he is known as the extensive research of the Indian caste system। श्रीनिवासन डिफाइन द कास्ट, क्या कास्ट किया, देखो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो श्रीनिवासन से इज एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ना कास्ट सिस्टम में श्रीनिवासन ने क्या किया था, रिसर्च किया था। श्रीनिवासन ने कास्ट सिस्टम को क्या कहा है, क्या a closed system of the stratifications in which social group having the customary right to the specific occupations are ranked hierarchically in relation to the each other। ही emphasized, यहाँ तक उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो डिफाइन करने के बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, अब उन्होंने जो चैट जीपीटी क्या क्या कर रहा है आपको बस, मतलब आप किसी बुक में पढ़ेंगे एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है आपको क्या क्या बता रहा है, देखिए he emphasized the dynamic nature of the caste and point to the term Sanskritizations to describe the process by which lower caste from the inward the practice and ritual of the higher caste group improve their social status। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये संस्कृताइजेशन जो था इसको उन्होंने एम्फेसिस किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया, ठीक है, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि क्या है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उनका भी थोड़ा सा दे दिया है। लॉइस क्यूमोट क्या है, उसका भी GS बुरे क्या है, दे दिया। और अगर आप चाह रहे हैं कि काइंडली जो सोशलिस्ट के बारे में ना, अब हमने कहा कि डिवाइड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बाय द सम, तो ये कुछ आ गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि काइंडली डिफाइन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बाय 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 फॉरेनर सोशलिस्ट, तो बाहर के दे देगा वो, है ना, उसी कंट्री के दे देगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। उन्होंने देखिए पूरा उस तरह से लिख दिया, लेकिन ये पूरा द कास्ट सिस्टम इज द इंडिया इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल इज। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि किसी के बारे में हमें डिफाइन करना, तो यहाँ पे किसी का नाम डाल दिया, फॉरेनर सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज टाइम हो गया है इसमें हम, और जो बाकी का जो बहुत सारा पार्ट है इसका, ठीक है, वी विल डिस्कस। अभी कितना स्लाइड हुआ है, 19 स्लाइड, बहुत सारा है अभी तो अब एक स्लाइड और नेक्स्ट में पढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक लेसन प्लान के बारे में बताया, कंटेक्स्ट बिल्डर है, ठीक है, एजुकेशन हैंड आउट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कंप्लीट करते हैं। पावर पॉइंट में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसी टॉपिक को ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ठीक है, आपको पावर पॉइंट के जरिए तरीके से आपको बताना है। ठीक है, क्या कर लेते हैं, नॉट ए लेसन प्लान अराउंड इन क्रिएट पावर पॉइंट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया फॉर। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट, ये पावर, अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का आप क्रिएट करना चाहते हैं चैट जीपीटी में, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर, लेकिन इसमें क्या होगा, स्लाइड क्रिएट नहीं होगा, मतलब आपको मैटर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से पावर पॉइंट से आप मैटर को कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइटल, अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम, इंट्रोडक्शंस, है ना, पूरा ये स्लाइड सिस्टम में प्रैक्टिकल सोशल एंड इकोनॉमी इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिप्शंस, रिफॉर्म मूवमेंट एंड लीडर। ठीक है, ये पूरा हमें 15 कितना 16 17 18 18 स्लाइड्स में हमें एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन पूरा क्रिएट करके दे दिया चैट। तो अब नेक्स्ट वन क्या था, नेक्स्ट वन इज
द कंटेक्स्ट बिल्डर। तो ये क्या है, ये कंटेक्स्ट बिल्डर भी है, क्या करता है, ये कंटेक्स्ट को बिल्डर करता है। कैसे, क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट किस पे, और इस पे कास्ट सिस्टम इंडिया, ठीक है, ये इंडिया। तो ये क्या कर देगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो क्या कर देगा ये, तो आपको ये कास्ट सिस्टम भी कर देगा बहुत। क्रिएट ए कॉन्टेक्स्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया क्या है, अच्छा ये इन्होंने क्या कर दी, एक उसमें दे दिया, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये क्रिएट अदर। अभी जो हमने बताया था ना आपको, एक दूसरे से रिलेटेड रिलेटेड, तो एक ही है उसमें आप करेंगे, तो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो उसी तरह का आपको मैटर देगा। लेकिन जब हम इसमें दूसरे इसमें करेंगे तो ये एक आपको कंटेक्स्ट देगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, क्रिएट ए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बना दिया, क्या क्या है, क्या करना है ना, ग्रेड क्राइटेरिया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ग्रेडिंग का, कंट्रोल ऑफ द ग्रेडिंग, द ग्रेडिंग सिस्टम इज द पार्ट डाइवर्सिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो पूरा उसने क्या कर दिया है, पूरा एक एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ इसमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, अदर अनदर विद एजुकेशनल हैंडआउट्स, तो हम यहाँ पर जिस तरह से हमने वो क्रिएट किया उसी तरह से हम एजुकेशनल हैंडआउट को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने न्यू किया, न्यू करने के बाद काइंडली इसके बारे में पूछ रहे हैं, एजुकेशन हैंडआउट, एजुकेशन हैंडआउट ऑन। अब हमने अभी तक तो बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के बारे में कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, तो इंडिया भारत आ गया है, भारत डाल के देखते हैं, भारत इकोनॉमिक पॉलिसी, तो भारत में क्या कहता है, इंडिया लेता है, भारत कहता है, देखिए ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, अब हमने जब इसका एक हैंडआउट तैयार किया कि भारत इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इन्होंने क्या, देखिए इकोनॉमिक एजुकेशनल हैंडआउट, भारत इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना। तो हमारा क्या हैंडआउट तैयार करके, हैंडआउट मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा हैंडआउट तैयार करके क्या है, Bharat, formerly known as the India, has rich history of the economic policies that have evolved over time and shape economic landscape. Understanding that these policies crucial, comprehensive a country's economy. So historical background, pre-independent era, 1914 से colonial rules, महात्मा गांधी laws, post independence era, ठीक है, नेहरूवियन सोशलिज्म, ग्रीन रेवोल्यूशंस, इकोनॉमिक आइडियाज, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक लिबरेशंस, ये 19 प्रेजेंट, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरेशंस, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ, कैरियर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, प्रमोशन मैन्युफैक्चर, ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिमोट एनर्जी, ये सब, स्वच्छ भारत अभियान, चैलेंजिंग फ्यूचर डायरेक्शन, इनकम,
जॉब, ये सारी भारत इकोनॉमिक पॉलिसी हैज इवॉल्व विद ओवर द ईयर transitions from the long laws and regulated economic model of the imbalance governance. तो जिस मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप जो चीज प्रैक्टिकली चैट जीपीटी से हासिल करना चाहते हैं वो आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत ही ज्यादा कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आपको यू कैन फाइंड आउट। तो ये चैट जीपीटी का कमाल है और एक मैजिक है। लेकिन इस मैजिक को समझने के लिए आपको पहले मैजिक को सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें एज वो मैजिक कैसे हमें चैट जीपीटी पर चलाना है। और जिन लोगों ने उस मैजिक को सीख लिया, मैजिक मतलब चैट जीपीटी की लैंग्वेज में मैजिक कहते हैं प्रॉम्प्ट क्रिएशन। जिन लोगों ने प्रॉम्प्ट क्रिएशन सीख लिया वो कुछ भी मैटर, कैसा भी मैटर, किस तरह का भी टॉपिक वो वो आसानी से बहुत इजीली वो कलेक्ट कर सकते हैं। और कल भी मैं आपको बहुत ही ज्यादा अभी तो कितना 19 स्लाइड सुनिए, ये तो बहुत सारे। कल भी मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, चैट जीपीटी के एंटिटीज कैसे बनता है, ठीक है ना, इफेक्टिव लेसन प्लानर कैसे होता है, ठीक है, कैपेसिटी फॉर जनरेटिंग आइडियाज कैसे होते हैं, रियल वर्ल्ड बेनिफिट ऑफ द चैट जीपीटी स्टूडेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट जनरेटर है, ठीक है ना, इजीली जनरेट राइटिंग प्रॉम्प्ट विद द चैट जीपीटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ईमेल राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के लिए स्टोरी टेलिंग कैसे मतलब राइट कर सकते हैं आप इसमें, है ना, है। और आज वो राइटिंग एंड एडिट फॉर द सजेशंस ऑफ द चैट जीपीटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं आपको पूरा, ठीक है, तो कल मैं आपको पूरा ये सारे चैट जीपीटी रिकमेंडेशंस लेटर ऑन चैट जीपीटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सिलेबस कोर्स विद चैट जीपीटी से कैसे करिए, ठीक है, रिसर्च फॉर द रिसर्च पर्पसेस चैट जीपीटी कैसे यूज होता है, ठीक है ना, तो किस किस में होता है, मैं साइंस, ये प्लेटफॉर्म कौन से लोगों से, तो बहुत सारे टॉपिक्स है यार। आपको कल भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो दिस इज द फाइनल फॉर रिव्यू। हमने के कहाँ तक चैट जीपीटी को हमने डिस्कस किया है, तो स्लाइड नंबर, कल आप थोड़ा सा मुझे मेरे माइंड से स्लिप हो जाए तो कल थोड़ा सा आप बता दीजिए किस माइंड से। रेसिपी बिल्डर तक हमने डिस्कशन किया। लेसन प्लान आगे बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमने आपको लेसन प्लान के बारे में बहुत डिटेल से बता दिया, तो वो उसको हम लोग ड्रॉप आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रेसिपी बिल्डर में क्या चीज़ होती है, लेसन प्लान, पावर पॉइंट, कंटेंट एजुकेशन, तो ये भी चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। करना क्या है, बस टॉपिक, लेसन, एरिया, क्लास एंड ग्रेड लेवल हम डाल सकते हैं। तो अब ये आज का सेशंस ओवर है, और किन लोगों को कुछ जानना है, ठीक है, और कुछ समझ नहीं आया है, और अगर कोई क्वारीज है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। आज तो बहुत कुछ समझ में मतलब चैट जीपीटी के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया हो, है ना। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, कोई संदेह है, तो यू कैन आस्क, है ना, अदरवाइज वी विल एंड, ठीक है, कंक्लूड करेंगे और कल करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस एनीवन? बुल्लाना मैम, अनुपमा मैम, सैरिश हिलाल, दिवाकर मिश्रा, परवीन परमार, ममता मैम, राशिदा हिलाल, आलोक कुमार, आई थिंक ऑल आर हियर। तो कोई क्वेश्चंस, एनी डाउट रिगार्डिंग द चैट जीपीटी? यस, गुड सेशंस, इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। हो गया अनुपमा मैम? राशिदा हिलाल, आप लोग
तो आप लोगों ने इजीली मतलब समझ में आ गया है ना चैट जीपीटी एग्जैक्टली होता क्या है। राशिदा, थैंक यू मैम, थैंक यू राशिदा मैम, इट इज गुड एंड अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू मैम। और यस, यस सर, ओके ममता मैम, यस सर। तो अगर आपके पास नहीं समझ में आया तो ना आप थोड़ा ना आज जाकर ना थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपकी इसमें प्रॉब्लम्स है, जो आपका लेसन प्लान है, अपने हिसाब से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप चाहें इसमें आप बहुत इजीली तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद के साथ आप इसमें बहुत सारा टाइम आप बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आई थिंक वी एंडेड हियर, और thank you very much everyone for joining this today's workshop. Day first we will discuss about the introductions, history, and some of the term uh, which is used in chat GPT. So okay, thank you very much. If there is no questions, thank you very much. अगर if there is any questions, so kindly ask. I can give you answer. You are free for giving. You are free ask any questions via mail, है ना, via WhatsApp, है ना. You can ask. Okay. Thank you very much. Thank you Najish ma'am. Thank you very much for your valuable comment. Very effective to understanding. Good, very good. Okay. Bye. See you. I think the time is 8:50 is 50. ठीक है, थोड़ा सा कल थोड़ा सा टाइम. Okay. Thank you very much. Thank you everyone for coming to session. See you tomorrow for new energy. Okay. Thank you.